हाथ बेज़ोर हैं, इल्हाद से दिल खूगर हैं, उम्मती बाइसे रुसवाइये पैगंबर हैं। बुत शिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर हैं। था इब्राहीम पिदर और पिसर आज़र हैं। बादा आशाम नए, बाद नया खुम भी नए। हरम काबा नया, बुत भी नए, तुम भी नए। किसी यकजाई से अब अहद ग़ुलामी कर लो, मिल्लत अहमद मुरसल को मकामी कर लो। क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू विद इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम योर होस्ट Sumair Ahmed, and right now you are watching an exclusive special telethon transmission under the umbrella of Ehsaas Foundation Ramadan Appeal 2025 from across the world. You are watching this live transmission, and you know very well on daily basis we come to you with this appeal that there are people in millions, there are children in millions waiting for your help. They need water, they need food, they need to have food for iftar. They need to have water hand pumps so that they could remove their thirst. There is a need, dire need to build mosques in many areas of Pakistan where Muslims brothers are supposed to look here and there to offer their prayers, but they don't find any mosque. So that's why there are so many areas where you need to help Ehsaas Foundation so that we could help out them and we could reach them and we could build mosques as many as possible. You need to send your love with the Ramadan ration packs to those needy people who don't have food, and it is quite difficult for them to make their survival even possible. You know very well, my dear viewers, we are going to welcome the blessed month of Ramadan, and in the blessed month of Ramadan, as Muslims, we know very well what do we need for Sahri, what do we need for Iftar. But I am talking about, we have been talking about those people who are very much needy, who are suffering from thirst, who are suffering from hunger, and they are very much needy. They don't have resources available with them so that they could pass the month of Ramadan as we are going to pass by the grace of Allah Almighty. So if you want to be blessed on the day of resurrection, if you want to have the pleasure of Allah Almighty, this is your ethical and religious and moral responsibility that as a Muslim brother, if you see that there is another Muslim brother who is very much needy, and if you have wealth more than your need, if you have wealth more than sufficient, so this is your ethical, religious, moral responsibility to come forward and start helping such needy and suffering Muslim brother. There are people in millions, there are children in millions who are still waiting for you, who have a hope that inshallah this Ramadan, once again, the representatives of Ehsaas Foundation would come there, and inshallah they will be fed with iftar, they will be fed with food and water. Inshallah, more mosques will be built before Ramadan or during the month of Ramadan. So if there are people who have hope and expectations from you, it means that you are the one who is responsible to do that and to fulfill their responsibilities. And secondly, if you don't fulfill the responsibilities of others, if you don't want to come out or step forward to help others, and you can, so it means that you are going to be accountable before Allah Almighty on the day of resurrection. We know very well, alhamdulillah, there are millions of people around the world who watch this exclusive transmission. You don't watch only, but alhamdulillah, your hearts are filled with the light of helping others. You have this commitment with yourself that whenever Ehsaas will call you out to help others, inshallah, you will help them whatever it is possible for you. And whoever comes forward and start donating or helping others, it will be a pleasure of ours, the people who are working on and contributing in this noble cause of Ehsaas Foundation. You know very well, my dear viewers, we have been serving the humanity for last 16 years, and during this era and during this time, we have witnessed that alhamdulillah, we can share this fact proudly with you that by the grace of Allah Almighty, we can say that, we can claim that
millions of people have been helped under the umbrella of Ehsaas Foundation, and you are the actually power, you are actually the actual motivation, genuine motivation of Ehsaas Foundation, our donors, our viewers, because it is just because of you. You people love to help others, you people love to spend from the sustenance what Allah Almighty has given you. This is why, Alhamdulillah, we can say that Ehsaas Foundation is sharing these achievements with you. So मेरी हम सब की आप सब से जो एहसास फाउंडेशन का पूरा एक फेस है, ये जो एक नोबल कॉज के लिए जो कलेक्टिव एफर्ट्स हो रहे हैं, हम आप समझ लें कि गाड़ी का अगर एक पहिया है तो आप दूसरा हैं। हम अकेले रहकर यहाँ कुछ नहीं कर सकते, कितनी ही हमारी ग्रेट इंटेंशंस हों, हमारी प्लानिंग्स कितनी स्ट्रॉन्ग हो, हम कितना ऑर्गेनाइज्ड वे में, कितने एफिशिएंट वे में काम करें, अगर आप नहीं हैं तो फिर आपके बगैर ये जो एहसास की गाड़ी है, ये जो दूसरों के मदद की एहसास की गाड़ी है, ये चल नहीं सकती। तो हम आपके इन एफर्ट्स को, इन कंट्रीब्यूशन को, द लव यू शेयर with us and the love you send to your Muslims brother and sisters in the form of donation and charity, we acknowledge that, we appreciate। और हमारी appreciation और acknowledgement अपनी जगह, सबसे बड़ी बात तो ये है कि you are the people who are blessed। Why you are blessed? Because you have been chosen by Allah Almighty। क्योंकि जब भी हम इस तरह के नोबल कॉज में कंट्रीब्यूट करते हैं तो याद रखिएगा कि बज़ाहिर मे बी अपेरेंटली इट सीम्स टू बी आवर ओन डिसीजन, लेकिन ये कभी हमारा फैसला नहीं होता। वी हैव बीन चूजन बाय अल्लाह ऑलमाइटी, हमें अल्लाह ताला चुनता है और ऐसे खुश नसीब लोगों के दिल में ये बात डाली जाती है कि वो बंदगान खुदा की, अल्लाह की मखलूक की मदद करें। एक कॉन्सेप्ट ये भी है, बिल्कुल इट इज़ देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट दैट अल्लाह ऑलमाइटी राज़िक, यानी कि कायनात को रिस्क देने वाला है। अगर वो चाहता तो वो पूरी कायनात को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता इस रिस्क को, यानी कि ना कोई ज़्यादा पैसा रखता या माल रखता या दौलत रखता, ना किसी के पास कम होता, यानी कि एक दूसरे की ज़रूरत के हवाले से माली तौर पर हम लोग बरी ज़िम्मा होते। ना किसी के पास कम होता कि वो दूसरे से एक्सपेक्ट करे कि वो उसको दे, ना किसी के पास ज़्यादा होता कि उसकी ज़िम्मेदारी बने कि वो कम मिलने वाले को दे। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मंशा, उसकी चाहत, उसकी मर्ज़ी, उसका डिसीशन और उसकी हिकमत ये है कि जिनको कम दिया वो सब्र करें। दे आर सपोज टू बी पेशेंट बिफोर अल्लाह ऑलमाइटी। वट एवर Allah Almighty is providing them, they have to be patient। But the people who are being blessed by Allah Almighty with wealth more than their need, it means that they are also being examined। And what is this examination all about? This examination is all about whether they are going to spend from the sustenance what Allah Almighty has given them to those who are needy or who have not been blessed as you have been blessed. This is the examination being conducted by Allah Almighty, and on the day of resurrection, on the day of judgment, the result will be in favor of those who obey Allah Almighty and spend from the sustenance in the way of Allah over the people who are the family of Allah Almighty as guided by Islamic scholars and ulama किराम। हम ये चाहते हैं कि आज बड़े पैमाने पर रमज़ान में आप समझ लें कोई चंद 4-5 दिन बाकी हैं और ये वक्त कुछ भी नहीं है। इस वक्त भी हमारी आपकी मोहब्बतें हमें जो है मौसूल हुई और आपके जो डोनेशंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी ग्रेट मोटिवेशन मिली। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको और ज़्यादा मदद करने की ज़रूरत है। ज़रूरत बड़े पैमाने पर है। मैंने पिछली किसी ट्रांसमिशन में आपसे ये डिस्कस किया था कि बिल्कुल ऐसा ही है कि इस वक्त ज़रूरत पहाड़ के बराबर है और जो रिसोर्सेज हैं, जो असबाब हैं, जो अवेलेबिलिटीज़ हैं रिसोर्सेज की, वो एक दाने के बराबर हैं। हमें इसको बड़ा करके कम से कम ऐसी चट्टान बनानी है कि हमें महसूस हो कि तारीकी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब एहसास फाउंडेशन के साथ आप व्यूवर्स ने, आप डोनर्स ने उनके साथ कंट्रीब्यूट किया तो कहीं उस तारीकी में हमें एक रोशनी नज़र आए। हमें इस बिकन लाइट को
प्रूफ करना है कि अल्लाह ने अगर हमें अता किया है तो ये जज्बा खिदमत खल्क से भी हमारा दिल सरशार है कि जब भी उनके लिए सदा दी जाती है, अपील की जाती है, तो हम उनमें से होते हैं जो आगे बढ़ चढ़ कर मदद करते हैं। और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो उस मोहब्बत के तकाज़ों में एक बड़ा तकाज़ा यह है कि जब भी रमज़ान का महीना आता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो पूरा साल ही, पूरी ज़िंदगी, आपकी पूरी सीरत आप उठा कर देखें, खिदमत खल्क का जो बाब है उसको सुनहरी हुरूफ से लिखा गया है। आप तो पे करे जूदो सखा हैं, लेकिन साहबा फरमाते हैं कि जब रमज़ान का महीना आता तो स्पेशली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत देखने के काबिल होती, और आप इतने ज़्यादा सखी हो जाते, इतने ज़्यादा सखी हो जाते कि जो बारिश बरसाने वाली बदलियाँ हैं उनकी रफ्तार से भी ज़्यादा मेरे प्यारे आका, आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत हो जाया करती। तो इफ़ वी follow him, because he is the role model to the whole humanity till the qiyamah. So this is the responsibility of each and every follower, that he or she should follow the teachings of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, especially in the perspective of donation of or helping others. तो हम उनसे मोहब्बत का इज़हार कर सकते हैं। उसका एक तकाज़ा ये भी, आइए उनकी सुन्नत पर अमल करते हुए बजाय ये कि हम रमज़ान से कबल अपनी जो तिजोरियाँ हैं, अपना जो मालो मता है, अपना जो बैंक बैलेंस है, उसको बंद कर लें, आइए हम गुरबा के लिए खोल दें। बिकॉज़ ये वो तिजारत है कि जब अल्लाह की राह में आप अल्लाह के बंदों के लिए खर्च करते हैं तो याद रखिएगा ये वो तिजारत है वाहिद जिसके लिए डेफिनेशन तब्दील हो जाती है। एज़ फार एज दिस वर्ल्डली इकनॉमिक्स इज़ कंसर्न, द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ट्रेड इज़ और बिजनेस इज़ देयर इज़ नो बिजनेस वेयर देयर इज़ नो रिस्क। लेकिन ये जो तिजारत और कारोबार और बिज़नेस हम अल्लाह के साथ करते हैं, याद रखिएगा दिस इज़ द ओनली बिज़नेस, दिस इज़ द ओनली ट्रेड जो आपको 100% प्रॉफिट ही गारंटी करता है, 100% इंसेंटिव ही गारंटी करता है। अल्लाह के साथ जो ये तिजारत करता है उसका ये पैसा, ये इन्वेस्टमेंट कभी भी ज़ाया नहीं जाती। अल्लाह आपको दुनिया में भी इसका बेहिसाब अता फरमाता है और आखिरत में भी आपको बेहिसाब अता फरमाता है। फिर हम जिन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, आपको पता है पैदाइश से लेकर मौत तक कितने ही प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने गाहे बगाहे मुलाहिज़ा किए और आपने हमारी ट्रांसमिशंस में ना कि सिर्फ देखा बल्कि विजुअल्स के ज़रिए और वीडियोस के ज़रिए आप तक ये पैगाम पहुंचाया गया कि आप जिस मोहब्बत के साथ, जिस एतमाद के साथ, जिस ट्रस्ट के साथ आप एहसास फाउंडेशन का साथ देते हैं, तो देखिए ग्राउंड रियलिटी क्या है कि किस तरह पानी के हैंडपम्प्स लगाए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो डोनर है, जिसने जो ज़रिया बना, जिसको अल्लाह ने ये अपॉर्चुनिटी दी, ये तौफीक दी कि उसने वो पानी का हैंडपम्प लगवाया, तो बाकायदा उसके नाम की स्लेट वहाँ पर मौजूद है, टैग किया गया उसके नाम को। क्यों? इसलिए नहीं कि आपका नाम दिखाना मकसद था, वहाँ पर जो पानी पीने वाले लोग हैं वो तो यकीनन उस नाम से वाकफियत भी नहीं रखते, लेकिन वो नाम जो रिप्रेजेंटेटिव्स आते रहे गाहे बगाहे एहसास फाउंडेशन के, जो ग्राउंड पर रहकर जो वॉलंटियर्स काम करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एडमिन के अंदर उनकी बहुत सी प्लानिंग के अंदर बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है, वो जब हमसे शेयर करते हैं ना कि वो रोज़ाना वो नाम साफ़ करते हैं, उसको पानी से, उसको कपड़े से साफ़ करके, यानी कि कितना रिस्पेक्टेबल और ऑनरेबल है उनके लिए वो नाम। और क्यों ना हो नाजरीन कि अल्लाह ने उन पर ये करम फरमाया कि उसको ज़रिया बनाया उस शख्स को कि जिसने वहाँ हैंडपम्प लगवाया। लाखों दुआएं रोज़ाना के हिसाब से उस शख्स को मिलती हैं जिसने एहसास फाउंडेशन की छतरी के साए में कहीं पर भी किसी ऐसे एरिया में पानी का हैंडपम्प लगाया है कि जहाँ पर पानी की शदीद किल्लत है। पानी का तस्वुर, अगर पानी कहीं नापैद है, पानी मौजूद नहीं है, तो आप बताइए पानी तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी पानी है। विदाउट वाटर नो ह्यूमन बीइंग कैन इवन कैन इमेजिन टू सर्वाइव। तो आप ख़ुद बताइए कि जब ऐसे एरिया में कि जहाँ पानी मौजूद ही नहीं है, वहाँ पानी का हैंडपम्प लगता होगा, साफ़ सुथरा प्योर पानी पीने का पानी जब उन बच्चों को, उन बूढ़ों को, उन नौजवानों को मिलता होगा, तो फिर वो दिल से जो दुआएं आपको देते होंगे, यकीनन उसका बड़ा अजर व सवाब अपनी जगह। लेकिन बहुत सी ऐसी दुआएं जो हमारे डोनर्स को पहुंची और आज वो महसूस करते हैं कि अल्लाह ने, जब उन्होंने अल्लाह की राह में अल्लाह के बंदों पर ये उनकी मेहरबानी हुई कि उन्होंने इतने हैंडपम्प्स लगाए, मसाजिद की तामीर की, राशन पैक्स पहुँचाए, तो अल्लाह ने फिर उन पर कितना करम फरमाया। सदकात ऐसी चीज़ है, अल्लाह की राह में जब आप पैसा देते हैं तो सिर्फ पैसे का बदला, नाज़रीन हम पैसा क्यों सोचें, अल्लाह की रहमत इतनी वसी है, अल्लाह इतना करीम है कि जो उसके बंदों पर ख़र्च करता है उसकी रज़ा के लिए और खुलूस दिल के साथ करता है, अच्छी सच्ची पक्की नीयत के साथ करता है कि मुझे अल्लाह को खुश करना है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है, अल्लाह की कुर्बत हासिल करनी है। कैसे कि आसान तरीका है कि जो अल्लाह के बंदे हैं हम उनके कामों को आसान करने में लग जाएँ, तो फिर ज़मीन व आसमां
ने ये अपने चश्मान से मंज़र देखा कि जो दुनिया वालों के काम आसान करने में लग गए, जो अल्लाह के बंदों के काम आसान करने में लग गए, अल्लाह ने उसके कामों को अपने हाथ ले लिया और फिर उसके सारे कामों को आसान कर दिया। लोगों के रास्ते आरास्ता होते गए। लोग अपने मुंह से बताते हैं कि हमारे पास इतना नहीं था, अल्लाह ने हमें ये तौफीक दी कि अल्लाह ने हमें इस ब्लेसिंग से नवाजा कि हमारे दिल में आया कि हमारे पास थोड़ा भी है, हम अल्लाह की राह में ज़रूर देंगे। 10 रुपये हैं तो 5 रुपये देंगे, अगर हमारे पास 1 लाख रुपए हैं तो हम 20,000 रुपये अल्लाह की राह में देंगे। ये वो उनका नज़रिया था कि जो इर्तिकाई मनाजिल जिसने तय की और कुछ ही अरसा के अंदर वो अपनी सक्सेस स्टोरीज़ बताते नज़र आते हैं। हमें नहीं पता कहाँ कहाँ से दरवाजे रिस्क के हम पर खुले और फिर रब ने हम पर अताओं की बारिश की। तो आप भी अगर चाहते हैं कि दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ, कामयाबियाँ, कामरानियाँ अल्लाह आपके भी मुक़द्दर करे, तो इसका एक बेहतरीन रास्ता, एक बड़ा खूबसूरत रास्ता है कि आइए लोगों के रास्तों से पत्थर हटाएं, लोगों के रास्तों की रुकावटें हटाएं, लोगों की मुश्किलात को आसान करें, उदास चेहरों पर रोशनी बिखेरने का सामान करें, जो भूखा है उसको खाना खिला दें, जो प्यासा है उसको पानी पिला दें। इफ़ यू वांट एहसास फाउंडेशन टू सेंड अ रमदान राशन पैक, यू आर सपोज टू डोनेट $75। इफ़ यू वांट टू फीड 50 people at a time at the time of iftar, you are supposed to donate $200. If you want Asas Foundation to build a mosque in such an area where there is a dire need to build a mosque so that our Muslim brothers could go there to offer their prayers, to recite the Holy Quran and to do other good deeds. So in order to build this mosque, you are supposed to donate $9,500. If you donate $185, inshallah, a small hand pump will be installed in such an area where there is a dire need of water. हमारा काम है अजान देना, हमारा काम है आप तक ये मदद के लिए पुकार पहुंचाना। और फिर वो दिल हम देखते हैं दुनिया भर से जो इस वक्त जिस कोने से हमें देख रहा है, अगर उसके दिल में खिदमत खल्क का जज्बा है तो वो शख्स आगे आता है। मैं आपका तारुफ पहले भी करा चुका हूँ, जब भी बात करते हैं बड़ी मोटिवेशन आपको तो नाजरीन मिलती होगी, लेकिन जिस अंदाज से वर्ड टू वर्ड ये फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ हमें बताते हैं, तो हमें यहाँ खुद खड़े होकर एक मोटिवेशन मिलती है, बल्कि ऐसा लगता है कि हमें एप्रिसिएशन मिल रही है कि यार हम कितने बड़े नोबल कॉज के लिए अल्लाह ने हमें चुना है और हमारी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन जो है वो जा रही है। एहसास फाउंडेशन के बेहतरीन रिप्रेजेंटेटिव हैं, दिन और रात खिदमत इंसानियत के सफ़र में पेश हैं। सैयद फ़हद हुसैन हमारे तो सर मैं चाहता हूं सबसे पहले कि इस वक्त तक जो हमारी ट्रांसमिशंस ऑन एयर हुई हैं, हमारे टेलीथॉन्स देखे गए, किस तरह का फीडबैक आ रहा है दुनिया भर से और किस तरह हमारे गरीब मुसलमान बहनों और भाइयों के साथ रमज़ान की इस आमद पर पानी के हैंडपम्प्स के हवाले से, इफ्तार के हवाले से, रमज़ान राशन पैक्स के हवाले से किस तरह का फीडबैक है जो इस वक्त तक एहसास फाउंडेशन रिसीव कर रहा है? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुमेर भाई, रोज़ाना की तरह एक बार फिर टाइम देने के लिए। माशाल्लाह, थैंक यू। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि आपने बताया कि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अच्छा, हमारी टेलीथॉन तो इस वक्त लाइव देखी जाती है, फिर सुबह के टाइम पे रिपीट भी होती है यूएस के अंदर। ज़बरदस्त फीडबैक ये आ रहा है कि हमारे पास रिपीट जो टेलीकास्ट होती है उसमें भी डोनर्स की कॉल आ रही है हमारे पास। एक्सीलेंट। कल भी हमारे पास एक डोनर है हमारे, उन्होंने 5 हैंडपम्प का इंतज़ाम किया। आउटस्टैंडिंग। कल भी हमने जो ट्रांसमिशन करी है वो यूएस में रिपीट गई है और वो टेलीथॉन, अच्छा उन्होंने जिक्र भी किया कि हमने आपकी टेलीथॉन देखी थी, उस मोटिवेशन उस टेलीथॉन को देख के उन्होंने 5 हैंडपम्प का ऐलान किया है। ज़बरदस्त। ये एक मोटिवेशन ही है, एक ये एहसास ही है लोगों को, अपने दूसरे बहन भाइयों का जिनके पास ये सारी सहूलियात नहीं है, चाहे आप पानी से मुताल्लिक वो बात करें, चाहे राशन से मुताल्लिक या इफ्तारी से मुताल्लिक। बहुत से लोग सुमेर भाई हमें फिदिया के नाम पे भी डोनेशन देते हैं। ज़बरदस्त। ये फिदिया वो होता है जो रोज़े नहीं रख पाते, जो हमारे बुजुर्ग हजरात या ख़वातीन होती है, लेकिन उनका ये कहना ये होता है कि जो मैं फिदिया का अमाउंट दे रहा हूँ कोशिश करें ये अफ्तार की मद में खर्च करें, कम से कम जो लोग रोज़े रख रहे हैं उनकी अफ्तारी का इंतज़ाम हो सके। बेहतरीन। तो ये पॉजिटिविटी इन लोगों के लिए है जो हमारे डोनर्स हैं। ऑब्वियसली जो मैं कहता हूँ कि इनके बगैर कोई भी इदारा कुछ भी नहीं कर सकता। ये एक बुनियाद है, ये एक असेट्स हैं एहसास का, जिसकी वजह से एहसास चलता है। और वो जो लोग
आपके दिए हुए अतियात को कबूल करते हैं, उनके लिए आपके दिलों में जो इज़्ज़त और मकाम है उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं, फील्ड में काम करते हैं, हमें तो दुआएं मिलती हैं, ये तो अल्लाह का हमारे लिए ऊपर एहसान है कि हमें इस काम के लिए मुंतखब किया। चाहे हम अपने घर से उठ के दूर दराज जगहों पे जाते हैं, काम करते हैं, अपने शहर को छोड़ के जाते हैं, बिल्कुल हकीकत बिल्कुल ऐसी है, लेकिन उनकी जो हमें दुआएं मिलती हैं उसका कोई पैमाना नहीं है। अब सोचें, जब हम उनको बताते हैं कि ये दिया हुआ हैंडपम्प या दिया हुआ राशन या अफ्तार इन लोगों ने दिए जो आपको जानते नहीं है, जो आपको पहचानते भी नहीं है, तो सोचें उनके दिल से आप लोगों के लिए कितनी दुआएं निकलती होंगी। और ये पॉजिटिविटी है आप लोगों के लिए भी, उन डोनर हज़रात के लिए भी। जो लोग, अच्छा, रेगुलर की बुनियाद पे हमारे पास कॉल्स का रश बढ़ गया सुमेर भाई, ज़बरदस्त। लोग पूछ रहे हैं कि अभी आप लोगों को और क्या टारगेट के, कल हमने बात करी थी टारगेट के हवाले से, जिस तरह हम जिक्र भी किया था कि जो बिल्कुल उससे एक्सीड होने का इरादा है और एक्सीडेंट शुरू हो चुकी है, क्योंकि लोगों की तादाद दिन के हिसाब से बढ़ती जा रही है। अभी कमोबेश 5 से 6 दिन रह गए मुश्किल से रमज़ान में, तो उन लोगों को भी इतनी ही फ़िक्र लाहिक है कि हमारी अफ्तारी का इंतज़ाम किस तरह से होगा। उनको अपने बच्चों की फ़िक्र है, जो घर के सरबराह हैं उनको अपनी ख़वातीन की फ़िक्र है। ज़ाहिर सी बात है, अफ्तार पूरे मुसलमानों का एक है ऐसे जिससे लोग करना चाहते हैं, लेकिन जहाँ पे ये सहूलियात नहीं है उनके पास क्या आलम होगा। आजकल शहर के हालात भी ऐसे हैं कि हर घर में उस तरीके से अफ्तारी का एहतमाम नहीं होता जैसे कुछ सालों पहले होता था। महंगाई, बेरोज़गारी इसकी बेहतरीन, इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। अब सोचें, जहाँ पे लोग नहीं हैं अपनी आमदनी का ज़रिया पैदा करने के लिए, कोई रिसोर्सेज नहीं है। शहर में तो अफ्तारी हो जाती है मकामात पे, मार्केट में, सिग्नल्स के ऊपर, अस्पतालों के अंदर, इन जगहों पे, लेकिन वहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ना मार्केट्स हैं, ना सिग्नल्स हैं, ना वहाँ पे कोई अफ्तारी कराने वाला है। सबकी नज़रें एहसास की तरफ हैं और एहसास की नज़रें आप डोनर हज़रात की तरफ हैं। उन लोगों को बहुत उम्मीद है इस बार के हमारे बच्चों की अफ्तारी का इंतज़ाम होगा, हमारे बच्चों की ईदी का इंतज़ाम होगा और पानी का इंतज़ाम अव्वलीन तरजीह है, क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं। शहर में भी आपको अंदाज़ा है कि पानी की कमी हो चुकी है। सोचें उन जगहों पे जहाँ पे पानी ही दस्तयाब नहीं है, हम तो पीने के पानी की बात करते हैं, तो वहाँ पे तो पानी दस्तयाब नहीं है। तो इस वक्त आप लोगों के एहतियात की, आप लोगों की मदद की, आप लोगों की हौसला अफजाई की कितनी ज़रूरत है, इसका मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ इस बात का। और मुझे उम्मीद है आप हर साल जिस तरह एहसास का साथ देते हैं, इस साल भी एहसास का हाथ इसी तरह थामे रखेंगे और इसी दिलजोई से इसकी आगाज़ करेंगे। अल्लाह अकबर। और जो लोग ज़रूरतमंद हैं, अगर हम इसको सम अप करके आपसे बात करें, थोड़ी समरी इसकी बताएं। हम ये चाहते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग अपना जो ये जज्बा है आपके दिल में मदद करने का, और अल्लाह ने आपको इस जज्बे से आपके दिल को सरशार किया, तो अभी जो वक्त है वो सिर्फ गुफ्तगू करने या गुफ्तगू सुनने का नहीं है, ये अमल का वक्त है, ये आगे बढ़कर मदद करने का वक्त है। बिल्कुल उनको अपना मुसलमान भाई बहन हम कहते हैं। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लें कि यार वो वाक़यतन हमारे बहन भाई हैं। आप मुझे बताइए कि अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है, ज़रूरत से सिवा आपको दिया है, आपका भाई आपकी बहन अगर परेशान है तो क्या आप उसको परेशानी में देख सकते हैं? जवाब आएगा हरगिज़ नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किस किस अंदाज से, किस किस जहद से मोटिवेट करने की कोशिश की है, क्योंकि अल्लाह और उसका रसूल जानते हैं कि इंसान जो है उसकी फ़ितरत में माल से मोहब्बत है। ये एलिमेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। यस, दिस एलिमेंट इज़ फाउंड इन योर नेचर। लेकिन जब आप ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं तो फिर इसका मतलब होता है कि आपने अब सरे तस्लीम खम कर दिया। अब जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है आपको वो बजा लाना ही लाना है, आपने वो फॉलो करना ही करना है। तो बस वहीं से हुक्म है कि उसकी मर्ज़ी ये है, जिसने आपको नवाजा है वो अपने दिए हुए माल में से चाहता है कि आप उसकी मदद करें जिनको उसने कम दिया है। यह आपका इम्तिहान है। अल्लाह हमें तमाम आजमाइशों में कामयाब फरमाएं, और ये माल एक बहुत बड़ी आजमाइश होती है, और क्योंकि इसकी मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा होती है, बड़ी मेहनत से इंसान कमाता है। लेकिन अगर वो ये सोचे कि उसका इसमें ज़ाती तौर पे क्या कमाल है, क्या हम इस दुनिया में अपनी मर्ज़ी से आए? जवाब आएगा नहीं। आप अपनी मर्ज़ी से ज़िंदा हैं कि जवाब आएगा नहीं। या दिल हमारी मर्ज़ी से धड़क रहा है? जवाब आएगा नहीं। ये सांस हमारी जो रवां है ये हमारी, इसमें कोई मर्ज़ी, कोई अथॉरिटी शामिल है, कोई हमारा इस पर बस चलता है? जवाब आएगा नहीं। तो जब लम्हा लम्हा, लहजा लहजा मोहताज है हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की, तो फिर उसी का हुक्म है कि मेरे माल में से दो। और याद रखें वो ऐसा करीम है कि वो माल खुद दे
और आपसे जब ये हुक्म करे कि माल दो, और जब आप माल दें तो ये वादा भी करे, आपको ये गारंटी भी देता नज़र आए कि ये जो तुम माल खर्च कर रहे हो ना, ये समझ लो तुमने मुझे कर्ज़ हसना दिया है। अब बताइए कि जो रब को कर्ज़ा दे, रब की शान करीमी, मतलब जिसके कुन की मोहताज है कायनात की हर चीज़ फ़यकून होने के लिए, उसको क्या हाजत, अगर आपने उसके हुक्म को मानते हुए अल्लाह की राह में खर्च करके अल्लाह को कर्ज दे दिया, तो अब आप बेफिक्र होकर बैठ जाएं। ये कोई दुनिया का ऐसा शख्स नहीं है कि जिसको आपने कर्ज पर कुछ दिया और वो वापस करने से कतरा रहा है, या हो सकता है कि जहां उसने इन्वेस्ट किया वहां नुकसान हो जाए। जिससे आप ये कर्ज दे रहे हैं वो इन तमाम हाजतों से पाक है, वो कायनात का रब है, उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं। वो तो आपको आजमा कर, और आप इस आजमाइश में पूरे उतर जाएं तो वो आप ही का फ़ायदा चाहता है। वो तो 70 माओं से हमसे मोहब्बत करने वाला है। वो चाहता है कि वो अपने बंदों को ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे ज़राए दे। वो चाहता तो ख़ुद सबको पूरा कर देता, लेकिन उनको भी आजमाइश में रखा, आपको भी, ताकि वो सब्र कर कर उसकी रज़ा को, उसकी क़ुर्बत को पालें, और आप माल उसकी राह में खर्च कर कर ये साबित कर दें कि आप उसके बंदे हैं। और जब उसने हुक्म किया है तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाज़रीन सिर्फ ये तकाज़ा नहीं है कि हम सिर्फ बाहर के बुतों को तोड़ दें। इसका तकाज़ा ये है हमें अंदर के बुतों को भी तोड़ना है। उस अंदर के बुतों में माल व मता से मोहब्बत और उसकी चाहत और उसको जमा करने की हिर्स, ये तमाम एलिमेंट्स भी एक बुत की तरह इंसान के अंदर होते हैं। तो खुदा से तुझको उम्मीदें, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नो उम्मीदी। ये शेर सुने आप नाजरीन, कितना मोटिवेट करता है। बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नो उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है। जब शैतान ये वसवा से डालता है ना, इतनी मेहनत से जमा कराए, अगर खर्च कर दोगे वापस कहाँ से आएगा, ये याद रखें, ये शैतान कह रहा है। लेकिन रहमान ये कह रहा है कि अगर एक दोगे ना तो मैं 10 करके लौटाऊंगा। अब फैसला आपके ऊपर है कि आपने किसकी बात माननी है। बस मानना उसी की है जो रहमान है, कायनात का खालिक है, कायनात का रब है, कायनात को पालने वाला है। अल्लाह आपको वो तौफीक दे। अल्लाह विल ग्रांट यू इंशाल्लाह दिस तौफीक कि आप इस कार्य खैर में, इस नोबल कॉज में हमेशा की तरह इस बार भी हम चाहते हैं कि बढ़ चढ़ कर आप इंशाल्लाह कंट्रीब्यूट करेंगे। किस किस जहद से हमें बात समझाने के लिए। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक है, क्रिएटर है, उसने हमारी नेचर को भी क्रिएट किया। तो जो क्रिएट करने वाला होता है वो अपनी क्रिएशन की एक एक चीज़ से वाकिफ़ होता है। क्रिएशन अपनी क्रिएशन से उस तरह वाकफियत और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन नहीं रखती जितना कि क्रिएटर रखता है। तो अल्लाह जानता है कि आप माल से कैसी मोहब्बत करते हैं, तो फिर उसने इनामात भी ऐसे जिक्र करे। और मोटिवेशन के लिए आप देखें कैसे कैसे अंदाज़, कुर्बान जाइए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के कि उसने अपने बंदों के लिए, उनके लिए उतारे और उस अंदाज से वो अहकामात पहुँचाए कि अकल दंग रह जाती है। मैं यकीनन टेलीथॉन्स का हिस्सा रहते हैं, अल्लाह हम पर ये करम फरमाता है कि हमें इतने बड़े नोबल कॉजेज़ के लिए वो सेलेक्ट करता है, चूज़ करता है और हमें कंट्रीब्यूशन का मौका मिलता है। अल्लाह का बहुत करम। अल्लाह हमें खुलूस नीयत के साथ इस कार्य खैर में अपनी कंट्रीब्यूशंस देने की तौफीक अता फरमाए। आई वुड लव टू शेयर दिस वन ऑफ द ग्रेट अहादीस कुदसी, मुझे बड़ा पर्सनली मोटिवेट करती है। जहाँ जहाँ मौका मिला हर सुनने वाले को मोटिवेट करती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये प्यारी अदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी की सूरत में कि किस प्यारे अंदाज से चैरिटी और डोनेशन के हवाले से ये मोटिवेशन और ये जहद और ये तहरीक और तरगीब हम तक पहुँचाई गई ता क़यामत के इंसानों के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात का फ़र्श बिछाया तो ये ज़मीन काँपने लगी। जब काँपने लगी तो अब इसकी कपकपाहट को, इसके थरथराने को रोकना था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहाड़ों को पेवस्त किया, पहाड़ों को तख्लीक किया। जब बुलंद व बाला पहाड़ पेवस्त हुए, तख्लीक हुए, तो ज़मीन का थरथराना, कपकपाना रुक गया और ज़मीन साकित हो गई, स्टेशनरी हो गई और बिल्कुल कांस्टेंट हो गई। जब फरिश्तों ने पहाड़ों की हैबत को और पहाड़ों की बुलंदियों को देखा तो वो बड़े हैरान हुए, क्योंकि फ़रिश्तों के लिए भी ये खलकत और ये पहाड़ एक मखलूक के तौर पर ऐसी थी कि जिसकी हैबत, डोमिनेशन, जिसकी हाइट, जिसकी पावर देखकर फरिश्ते बड़ा हैरान हुए। अर्ज़ किया कि मौला, इन पहाड़ों से भी ज़्यादा कोई तेरी ताकतवर मखलूक है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि हाँ, लोहा है, क्योंकि लोहा नाजरीन पहाड़ को काट दिया करता है। फिर हैरान हुए, लोहे के बारे में सुनकर हैरान होकर अर्ज़ किया, मौला, इस लोहे से भी ज़्यादा कोई तेरी ताकतवर मखलूक है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आग है, क्योंकि आग में नाजरीन लोहा पिघल जाता है।
फिर हैरान होकर अर्ज़ किया कि मौला इस आग से ज़्यादा कोई तेरी ताकतवर मखलूक है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि पानी है, क्योंकि नाज़रीन पानी आग को बुझा दिया करता है। फिर अर्ज़ गुज़ार हुए मौला हैरानी के साथ कि इस पानी से ज़्यादा कोई तेरी ताकतवर मखलूक है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हवा है, क्योंकि आप जानते हैं नाज़रीन मौसम के बारे में जब भी आप ख़बरें देखते हैं, आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, क्या बताया जाता है कि हवाएँ, पानी, जो समंदर हैं उनके तूफ़ानों का रुख तब्दील कर दिया करती हैं, इतनी पावरफुल होती है ये एयर यानी कि हवा। हैरान हुए और अर्ज़ किया कि मौला इस हवा से भी ज़्यादा कोई तेरी ताकतवर मखलूक है? अब जवाब सुनिए, कितनी ग्रेट मोटिवेशन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि हाँ, बंदे मोमिन का, इब्ने आदम का वो दायां हाथ है कि जब वो उससे कुछ सदका करता है और उसके बाएं हाथ को खबर नहीं होती, दिस एक्ट ऑफ चैरिटी, दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, दिस एक्ट ऑफ डोनेशन इज द मोस्ट पावरफुल एक्ट इन द आइज ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हमें चैरिटी, डोनेशन, अल्लाह की राह में पैसा खर्च करने के लिए, अल्लाह के बंदों के काम आने के लिए किस किस अंदाज से हमें मोटिवेशन दी गई है। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बड़ी तादाद में वाटर हैंड पंप्स की हमें ज़रूरत है। $185 से आप ये पॉसिबल कर सकते हैं। बहुत बड़ा सदका जारिया है इंशाअल्लाह। आप इस दुनिया में हो या ना हो, पानी का पंप लगा रहेगा, खल्के खुदा पीती रहेगी, आपको दुआएं मिलती रहेंगी। रमज़ान राशन पैक्स पहुँचेंगे, आपको दुआएं मिलेंगी। और $75 में आप एक गरीब फैमिली तक रमज़ान राशन पैक पहुँचा सकते हैं। आप दस्तरखान पर 50 लोगों को बिठाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो बंदे के जिन्होंने रोज़ा रखा उनको इफ्तार करा सकते हैं। एक एक बंदे को सवाब है कितना ज़्यादा इफ्तार कराने का। 50 लोगों को $200 देकर इफ्तार करवा सकते हैं दस्तरखान इफ्तार के ऊपर। और इसके साथ साथ मसाजिद की तामीर मुमकिन हो सकती है। अल्लाह का घर आप तामीर करवा सकते हैं एहसास फाउंडेशन के ज़रिए, और इस ज़मन में आपको $9,500। मैं चाहता हूँ फात भाई थोड़ा सा हम इफ्तार के साथ साथ इस पर भी थोड़ी बात करें। पानी की जो ज़रूरत है, मसाजिद की तामीर की जो ज़रूरत है, क्योंकि ये जो दिन है हर बंदा मोमिन ये चाहता है कि नहीं यार हमसे खैर के काम हो जाएं, भलाई के काम हो जाएं। तो अच्छी बात है कि जो एहसास साथ इस वक्त हम लेकर खड़े हैं, जो हमारी इंटेंशन है, अगर यही इमोशंस हमारे व्यूवर्स के भी हों और हमारे डोनर्स में भी इजाफा हो, और जो देने वाले लोग हैं वो कहें कि हाँ यार हमें भी रमज़ान का इस्तकबाल ऐसे ही करना है कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुँचानी है। तो मैं चाहता हूँ मसाजिद के हवाले से भी और पानी के पंप्स की जो रिक्वायरमेंट है उस हवाले से भी आप थोड़ा गाइड करें। बिल्कुल सुमेर भाई, जैसा कि आपको पता है गर्मियों की आमद हो चुकी है और रमज़ान की भी आमद इसके साथ शुरू हो चुकी है। लोगों को जहाँ पे इस बात की फ़िक्र है कि उनके पानी का इंतज़ाम हो जाए, अफ्तार का इंतज़ाम हो जाए या राशन का इंतज़ाम हो जाए, मैं आपको हल्फन कहता हूँ इतनी ही फ़िक्र उनको मस्जिद की तामीर की भी है। क्यों? क्योंकि उनको अपने बच्चों को तालीम देना होती है। ख़ास तौर पर रमज़ान में इबादत का शौक़ बढ़ जाता है, वज़ाइफ़ का, अस्कार का शौक़ बढ़ जाता है लोगों के अंदर। और ये क्यों ना बढ़े? क्योंकि अल्लाह का महीना है, अल्लाह की रहमत इसमें पूरी दुनिया पे बरसती है, ख़ासतौर पे मुसलमानों पे। जितनी फ़िक्र हम लोगों को इस रमज़ान की होती है उतनी ही फ़िक्र उन लोगों को भी होती है। इस बात का अंदाज़ा शायद आपको वहाँ पे जा करो, क्योंकि देखें 2 वक्त की रोटी या पानी तो सबकी बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन मस्जिद भी उनकी तरजीहात में शामिल है। वो चाहते हैं उनके बच्चे भी नमाज़ पढ़ें, कुरान की तालीम हासिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद को वक्त दें। देखें वहाँ पे हमें मस्जिद की सफाई के लिए किसी को रखना नहीं पड़ता, जिस तरह लोग एम्प्लॉय को रखते हैं झाड़ पोंछ के लिए। वहाँ के जो मकामी हैं वही मस्जिद के खिदमतगार हैं। अल्लाह, वो अपने बच्चों के साथ आते हैं, उनसे झाड़ू लगवाते हैं, सफाई करवाते हैं। मतलब उनकी इब्तिदा इसी तरह से होती है कि उनको ये सहूलत दी जाए और उनको तरबियत दी जाए कि ये आगे जाके तुम्ही ने संभालनी है। वाह वाह। फिर उसी कम्युनिटी में से मस्जिद इमाम भी शामिल होते हैं। मतलब जो बच्चे बड़े होते हैं वो अगर हाफिज़ बनते हैं तो वही इमामत के भी फ़राइज़ अंजाम देते हैं। तो सोचे एक मस्जिद से कितनों का भला हो रहा है, अल्लाह के दीन के लोगों में कितना इजाफा हो रहा है, कुरान पढ़ने वालों में, हाफिज़ बनने वालों में कितना इजाफा होता है। सिर्फ यही नहीं, पूरे इलाके में जहाँ तक आवाज़ जा सकती है अल्लाह की अजान गूंजती है, जो कि खैर व बरकत का बायस बनती है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जितने भी लोग हैं वहाँ पे जो अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरा करना चाहते हैं, जो कि एक अव्वलीन तरजीह है, लेकिन उसके साथ उन लोगों को मस्जिद की भी बहुत ज़रूरत होती है और रमज़ानों में ये शौक़ बढ़ जाता है। हैंडपम्प की मैं आपको बात बताऊँ तो आपको पता है जैसे गर्मियों की आमद हो चुकी है, वहाँ पर पानी की दस्तियाबी नापैद है। अगर वहाँ पे हैंडपम्प या ट्यूबवेल या वाटर वेल ना इंस्टॉल हो तो वहाँ पे पानी का कोई भी वजूद नहीं है। वहाँ पे ना कोई लाइंस है, ना कोई बारिश का निज़ाम है। वहाँ पे बारिश कितनी होती है आप लोगों को भी न्यूज़ में देख के अंदाज़ा हो जाता है। जब हम लोग जाते हैं वहाँ पे, अगर बारिश हो गई, अगर कोई बड़ी जगह है तो वहाँ पे 2 से 3 महीने का पानी स्टोर हो जाता है। लेकिन वो खुले आसमान के तले पानी होता है, वो कोई सेफ वाटर नहीं होता, उसमें जानवर भी पीते हैं,
जरासीम भी होते हैं, इंसान भी पी रहे होते हैं। मतलब अगर जब पानी की दस्तयाबी नहीं होगी तो जो मुयसर होगा उसी को इस्तेमाल किया जाएगा। ये तो हमारा आंखों देखा हाल है। जो आप फुटेज देखते हैं ये हकीकत में लोग वहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। हम जाके नहीं बोल रहे कि आप पानी के पास खड़े हों, हमें आपकी वीडियो बनानी है। आप रैंडमली वहाँ से गुजरेंगे तो आपको मनाजर आम देखने को मिलेंगे कि एक जौहर है, एक तालाब है, लोग बैठे में, उधर से जानवर पानी पी रहा है, इधर से इंसान अपनी ज़रूरत के लिए पानी इस्तेमाल कर रहा है, और यही पानी अपने घरों में खाने के लिए लेके जा रहा है। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, आप इमेजिन कर सकते हैं जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो ग्राउंड रियलिटी आपसे शेयर हो रही है। बहरहाल कहते हैं ना कि दुनिया, अच्छे लोग हैं दुनिया में, इसलिए दुनिया का कारखाना इस वक्त भी रवा दवा है। जो हमारी ट्रांसमिशन फात भाई ने भी आपसे बात शेयर की, मॉर्निंग में आप जो यहाँ पर की जाती है दोबारा से रीटेलीकास्ट, तो फिर वो देखी जाती है दुनिया भर में। और फिर हमें मॉर्निंग में आज कॉल रिसीव होती है, हमारे एक वीवर थे जो कि डोनर बने और उन्होंने हमारी जो ट्रांसमिशन थी उससे एक मोटिवेशन लेते हुए, मिस्टर सैयद अब्दुल कदीर हमारे भाई, इन्होंने इतना अच्छे अंदाज से अपना जज्बा खिदमत खल्क का इजहार किया कि $925 यानी कि 5 वाटर हैंड पम्प्स, स्मॉल हैंड पम्प्स के लिए इन्होंने ये डोनेशन दी। सर थैंक यू वेरी मच सर। आप यकीन करें कि हमें ऐसा लगता है कि आपने हमें कोई चीज़ दी है, आपने हमें कोई चीज़ प्रोवाइड की है। ये एक, वो कहते हैं ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मत एक जिस्म की मानिंद है। हमें ऐसा लगता है कि हमें किसी ने फ़रत और तस्कीन पहुँचाई है, और यही जज्बा होता है। अगर हम इन जज्बात के साथ बात ना करें आपसे, तो आपके दिलों पर कभी बात असर नहीं करेगी। अल्लामा इकबाल ने हमें बड़ा अच्छा एक सलीका और करीना सिखा दिया कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। तो बात दिल से नहीं आएगी तो वो कभी असर नहीं रखेगी। हम बिल्कुल बेलौस होकर अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए, हमारी बहन है मिसेस निगहत हुसैन, उन्होंने माशाल्लाह $555 उन्होंने दिए हैं रमज़ान राशन पैक्स की मद में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी इस कंट्रीब्यूशन को कबूल फरमाएं। मिस्टर मोहम्मद जावेद हैं हमारे भाई, $200 अमेरिका से इन्होंने कंट्रीब्यूशन दी है इफ्तार के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी भी इस काविश को कबूल फरमाएं। हमारे एक भाई हैं मिस्टर तैयब, इन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी के लिए, मोहम्मद तैयब साहब ने $25 दिए हैं और रमज़ान राशन पैक की मद में। देखें, कोई कम दे रहा है, कोई ज़्यादा, यानी कि आप अमाउंट्स की वेरिएशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हम एक बात पहुंचा रहे हैं। जब वो रोज़ा खुलवाने की बात आई ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी खुशखबरी दी कि जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को रोज़ा इफ्तार कराएगा तो उसको वही सवाब मिलेगा कि जो रोज़ा रखने वाले को मिला है। अब यकीन करें कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन में भी यकीनन कोई मालदार थे, कोई मालदार नहीं थे, बल्कि बहुत गरीब भी थे। तो जब ऐसे सहाबा के जिनके पास ज़्यादा मालूम मता नहीं था, दे वर नॉट रिच, दे वर नॉट ब्लेस्ड विद वेल्थ, वर्ल्डली वेल्थ, वैसे तो उनसे ज़्यादा अमीर कोई नहीं, लेकिन बहरहाल जब उन्होंने ये इतनी बड़ी खुशखबरी सुनी तो अर्ज़ गुज़ार हुए कि या रसूल अल्लाह, अगर हमारे पास इफ्तार कराने के लिए कुछ ना हो तो अब आप मोटिवेशन देखिए, इस्लाम एक्चुअली आपको बताना क्या चाहता है। आपने फरमाया कि कोई अगर खजूर खिलाकर भी किसी को इफ्तार करा दे तब भी उसको वही सवाब मिलेगा जो रोज़ा रखने वाले को मिला है। इससे बड़ी मोटिवेशन देखें कि कोई पानी का एक घूंट पिलाकर भी अगर रोज़ा इफ्तार करा दे तो उसको वही सवाब मिलेगा जो रोज़ा रखने वाले को। यानी कि समझ यह आया कि इस्लाम में क्वांटिटी मैटर नहीं करती बल्कि क्वालिटी मैटर करती है। आपने ये एहसास किया, आपने इस एहसास का इजहार किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये पसंद है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का एहसास करता है। मैं हमेशा कहता हूँ, इफ़ यू कैन सी विद योर आई एनीबडी एल्स हु इज़ नीडी एंड यू डोंट स्टेप फॉरवर्ड टू हेल्प हिम आउट, इसका मतलब कि फ़िज़िकली योर आई इज़ अलाइव बट स्पिरिचुअली योर आई इज़ डेड। इसी तरह अगर हम किसी को भी देखें कि कहीं आग लगी है और 4 लोग उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हमारे पास भी ऐसे असबाब हैं कि हम मिलकर वो आग बुझा सकते हैं और हम ऐसा नहीं करते, तो फिर याद रखिएगा ये दिल तो है और फिज़िकली शायद ज़िंदा भी है, लेकिन स्पिरिचुअली हमारा दिल मुर्दा हो चुका है। तो एहसास की बेदारी ही आपको इंसान से अजीम इंसान बनाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में जितना कुछ कहा जाए कम है, लेकिन उसका बहुत बड़ा ज़ख़ीरा आपकी सीरत पाक में खिदमत इंसानियत है कि आपने ऐसी मिसालें कायम की और फिर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, अहले बैत अतार किस अंदाज से उसको फॉलो करते हुए नज़र आते हैं। हमेशा बड़ी मोटिवेशन मिलती है। जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
यू मस्ट रिमेंबर कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर सामान की किल्लत है और हुजूर मोटिवेट कर रहे हैं अपने सहाबा को कि जाओ सामान लेकर आओ, सामान की किल्लत है, सामान की किल्लत है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर का सारा सामान लाते हैं, हुजूर के कदमों में पेश कर देते हैं। अल्लाह अकबर। अब रसूलुल्लाह जानते हैं आपको और आपसे ये नहीं कहते कि क्या लेकर आए हो, बल्कि पूछते हैं, आपके रफ़ीक हैं, आप जानते हैं उनको, पूछते हैं अबू बकर घर पर क्या छोड़ कर आए? तो अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, घर का जितना सामान था सब लाकर आपके कदमों में पेश कर दिया, घर पर अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी है। ये तवक्कुल था, ये अज़्म था और ये मोटिवेशन थी। अल्लाह अकबर। बहरहाल यहाँ पर भी बड़े मोटिवेटेड लोग हैं दुनिया भर में, और हमारी एक बहन है मिसेस हबीबा शाह, इन्होंने अमेरिका से ये मदद पेश की है और $240 इन्होंने डोनेट किए हैं रमज़ान राशन पैक्स की मद में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए। और मिसेस ज़ुबैदा बाबा हमारी एक और सिस्टर हैं और $940 इन्होंने डोनेट किए हैं रमज़ान राशन पैक्स की मद में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी भी इस काविश और कंट्रीब्यूशन को कबूल फरमाए। और मिस खैरुल माई जो है हमारी, खैरुल बाई हमारी बहन है, हमारी सिस्टर हैं, इन्होंने $240 से अपनी मदद पेश की है, अपनी ये टोकन ऑफ लव उन्होंने अपने उन मुसलमान बहन और भाइयों के भेजा है कि जो माशाल्लाह माशाल्लाह उनको बड़ी दुआएं देंगे। फ़ाद भाई, ये हमारी ट्रांसमिशन कंटिन्यू रहेगी एज़ पर शेड्यूल, आप डेली बेसिस पर जो लोग फॉलो करते हैं, जो नए देखने वाले उनको भी बता दें कि हमारा और आपका साथ इस सेगमेंट में इस ब्रेक तक रहेगा, जो अभी कुछ देर बाद हम आपसे लेंगे। और राइट आफ्टर दी ब्रेक इंशाल्लाह एक और होस्ट, हमारे को होस्ट इसको ज्वाइन करेंगे ट्रांसमिशन को, और एहसास फाउंडेशन के एक और रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर मौजूद होंगे। मेरे बाद मुझे ज्वाइन करेंगे सैयद अदनान खालिद, और रिप्रेजेंटेटिव होंगे एहसास फाउंडेशन के फवाद बेग इंशाल्लाह। वो दोनों शख्सियात भी उसी पैगाम को लेकर आपके पास आएंगे। सर थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। एक सिंगल लाइनर मैसेज अगर चला जाए, आपकी बातों में बड़ी मोटिवेशन होती है, मैं भी होता हूँ, हमारे व्यूवर्स भी होते होंगे इंशाल्लाह। सर वो आए आप लोगों से दरख्वास्त है, वक्त बहुत कम रह गया है। अब एक लम्हे के लिए सोचिएगा कि अगर अल्लाह ना करे हम पे ये वक्त आए कि जब हमारे घर में से हमारे बच्चे, हमारे ख़वातीन हमारी तरफ देखें और हम उनकी अफ्तारी का ना इंतज़ाम कर सकें। अल्लाह अकबर, ग्रेट मोटिवेशन। यानी कि फ़ाद भाई कह रहे हैं कि हम वो और वो हम भी हो सकते थे। तो बस अब शुक्र का सबसे अच्छा अंदाज़ ये है कि जो अल्लाह ने तौफीक दी है, कंट्रीब्यूशन दें, कुछ ना कुछ आप कंट्रीब्यूट ज़रूर करें, अपना नाम उस फहरिस्त में आप ज़रूर लिखवाएं कि जब मदद के लिए पुकारा गया था। याद रखें, जब नमाज के लिए अज़ान दी जाती है तो हर अज़ान सुनने वाला मस्जिद की तरफ रवाना नहीं होता, नमाज के लिए दौड़ता नहीं है। यानी कि ये तौफीक की बात है। वो लोग जो समझते हैं कि हम नमाज़ पढ़ने नहीं जाते या हम नमाज नहीं पढ़ते, वो याद रखें ये उनका फ़ैसला नहीं है, ये उनकी महरूमी है कि रब चाहता ही नहीं है कि वो उसके आगे झुकें। बस ऐसे ही खिदमत खल्क़ के लिए भी जो हम अज़ान दे रहे हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं कि सुनने वाले तो हमें लाखों हैं, लेकिन हज़ारों या सैकड़ों होंगे जो इस अज़ान पर लब्बैक कहेंगे और ख़िदमत इंसानियत की नमाज़ पढ़ने आएंगे। जिन लोगों के दिल खिदमत खल्क़ के जज्बे से सरशार हैं, वी आर होपफुल, वी बिलीव इन अल्लाह ऑल माइटी, कि जितने मैंने अभी आपको नाम बताए, जितने आपको डोनेशंस आपसे शेयर किए, अल्लाह अकबर, ये हमारी मोटिवेशन है। इससे पता चलता है कि अल्लाह को आपकी किसी एक इंडिविजुअल की कोई ज़रूरत नहीं। वो जो ज़रूरतमंद इस वक्त है ना, लाखों की तादाद में, याद रखिएगा नाजरीन, जाने से पहले आपसे बात करना चाहता हूँ, वो ज़रूरतमंद ज़रूर हैं लेकिन वो आपके मोहताज नहीं हैं, वो अल्लाह के मोहताज हैं। वो कैसे भी हाल में रहते हैं, जो फ़ाद भाई आपसे शेयर कर रहे थे, जो सिचुएशंस हैं, जो सरकमस्टांसेस हैं, हमारे अल्फाज कम पड़ते हैं, हम वो सिचुएशन आपसे एग्जैक्टली शेयर कर दें, इस कदर बुरे हालात हैं। लेकिन सलाम करना चाहते हैं हम आज आपके ज़रिए उन गरीब मुसलमान बहन और भाइयों को कि ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के ख़िज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। कैसे भी हालात हैं लेकिन रोज़ा रखना चाहते हैं, सहरी करना चाहते हैं, इफ्तार करना चाहते हैं, अपनी बंदगी के वो तमाम करीने इख्तियार करना चाहते हैं जो मैं और आप चाहते हैं। तो जहाँ वो इतनी मोटिवेटेड होकर अल्लाह के हुजूर अपना रोज़ा, अपनी दीगर इबादतें पेश करना चाहते हैं, तो आइए, क्योंकि रब ने हमें ये इस्तिताअत दी है, तो आइए मिलकर मदद करें। जो बेसहारा है उनका सहारा बने, कोई गिर रहा है उसको सहारा देकर उठा लें, कोई प्यासा है उसके लिए पानी का इंतज़ाम कर दें, कोई भूखा है उसको खाना खिला दें। मेरा और आपका इफ्तार का दस्तरखान सजने जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है, हमेशा सजता है, उनका दस्तरखान खाली है। आइए मिलकर चलते हैं, अपने अपने हिस्से की प्लेट उस दस्तरखान पे रखते हैं,
पानी का हैंडपंप बहुत बड़ा सदका जारिया, आप लगा कर देखें, आपको दुनिया में इसकी बरकतें नज़र ना आए तो फिर आप कहिएगा। बस ये मोटिवेशन जारी रहना चाहिए। मेरा आपका हमारा अकेले का किसी का काम नहीं है, कलेक्टिव एफर्ट्स हैं, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं, मिलकर काम करेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि कई मोमबत्तियाँ, कई कैंडल्स होंगी, रोशन दिए होंगे जो इस तारीकी में अच्छा खासा उजाला करने में अपना किरदार अदा करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। राइट आफ्टर दी ब्रेक, सैयद अदनान खालिद एज अ होस्ट एंड फवाद बेग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एहसास फाउंडेशन आर गोइंग टू ज्वाइन यू। इस मोहब्बत के साथ अपने मेज़बान सुमैर अहमद को दें इजाज़त कि लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी मुश्किल तेरी आसान पढ़ा कर, पढ़ने के लिए तुझको अगर कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर, ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ला इलाहा इल्लल्लाह।